Good morning, students. Welcome back to tax classes. So we are doing chapter income from house property, and in that we know how to find out gross annual value. So we have three steps. First step is expected rental value, second is adjusted expected rental value, and third step is gross annual value. Okay, so this we have seen in yesterday's class, and 2 or 3 students has done the homework and they sent photos also. I would request all the students to do homework. Tax is not easy, ma. Don't take it easy. So slowly we'll try to understand this subject. Okay. So let us start today's class. In today's class we'll understand step number 3. In step number 3 there will be some changes. Okay. So here actual rental value is there, adjusted expected rental value is there. Okay. So this will understand actual rental value. So to understand actual rental value, we should know what is the meaning of actual rental value. Okay. So let me start explaining. So we are saying actual rental value. Actual rental value. Okay. So let us assume like this. This is a house. Okay. So this is a house. This entire portion is given on rent. This house is this portion is given on rent. So Mr. X is a owner. Mr. X is a owner of house. Who is owner of house? Mr. X is a owner of house. So this house is taken on rent by Mr. Y. So Mr. Y will be called as tenant. So Mr. Y is tenant. So this Mr. Y is staying in the house. He will pay every month some rent to the owner. So he is receiving rent. Who is receiving? Mr. X is receiving. So Mr. X is receiving every month some rent from tenant. Okay. So this rent will be called as income to the owner of the house. So this rent which is earned by the owner is called as income. So that income we are calling as actual rental value. This income we are calling as actual rental value. Okay, understood? Easy. It's very easy. What we are saying, house portion is given on rent by Mr. X to Mr. Y. So Mr. X is a owner and Mr. Y is a tenant. So Mr. Y is staying in the house. For that purpose, he is giving rent to Mr. X. So Mr. X, he is receiving rent from Mr. Y, from his tenant. That will be called as income, and that we are calling as actual rental value. Okay. So we can say the rent received by the owner of the house will be called as actual rental value. Okay. So we understood actual rental value. Now 2 more things we have to understand. Okay. First is what? Loss due to vacancy. So this point we have to understand. What is the meaning of loss due to vacancy? Okay. Now try to understand. This house portion, Mr. Y is staying in the house only for 8 months. How many months is staying? Only 8 months is staying. In a year there are 12 months. From 12 months the house was on rent for 8 months. Okay. And 4 months it was vacated, means no one is staying in the house. So what Mr. Y did, he came and he stayed for 8 months in the last year, and he did not he vacated the house in the 8th month, we can say 9th month. But from 9th month to 12 months the house is vacated. 9, 10, 11, 12, 4 months the house is vacated. So the house, no one is staying here. Okay. If no one is staying here, the owner will not receive any rent. There should be a tenant. That tenant will pay rent to the owner. But Mr. Y is vacated the house. The house is empty now. No one is staying here. So for 4 months no one is staying. That 4 months no one is staying, that is called as loss due to vacancy. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में घर पे कोई भी नहीं है किराए से, आई कैन से राइट, घर पे ये मकान पे
किराए से कोई नहीं रह रहा, तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी। क्लियर। 12 मंथ्स में से 8 मंथ्स मिस्टर वाई रहा घर पे, रह के हर महीना पैसे दिया, फिर 4 महीने रहा, घर खाली हो गया, मिस्टर वाई खाली करके चले गया, कोई किराएदार आया नहीं, तो 4 महीने घर खाली है, तो जब खाली रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, लॉस ड्यू टू वैकेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी को क्या करना पड़ेगा, ये ARV से माइनस करना पड़ेगा। ये एक्चुअल रेंटल वैल्यू जो होता है दिस विल बी गिवन ऑफ 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स का होता है। एक्चुअल रेंटल वैल्यू जो है दिस इज ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का दिया रहता, तो हम क्या करेंगे, ये 12 मंथ्स में से माइनस करेंगे जितना भी लॉस रहता। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गई कि एक्चुअल रेंटल वैल्यू, फ्रॉम एक्चुअल रेंटल वैल्यू वी हैव टू डिडक्ट व्हाट, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो सर समाको समझ में आ गया, एक्चुअल रेंटल वैल्यू से वी हैव टू डिडक्ट व्हाट, लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर, वन थिंग इज क्लियर सर, आई एम राइटिंग हियर, सर फ्रॉम ARV वी हैव टू डिडक्ट लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ठीक है सर, तो ARV से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ARV 12 मंथ्स का होता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एक और कॉन्सेप्ट इसका नाम है अनरियलाइज्ड रेंट। वन मोर कॉन्सेप्ट इज दैट कॉल्ड एज अनरियलाइज्ड रेंट। अब ये क्या है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए सोचो, मिस्टर एक्स का एक और मकान है, मिस्टर एक्स इज हैविंग वन मोर हाउस पोर्शन, एक और मकान है इसका। ठीक है, एक पोर्शन है। ठीक है, लेट अस अज्यूम द पोर्शन इज इन ओल्ड सिटी, हमारे शहर में, ओल्ड सिटी हमारे शहर में एक मकान है इसका, मिस्टर एक्स का। अब ध्यान से सुनना, ये हाउस पोर्शन क्या हुआ, 8 मंथ्स तक एक किराएदार था जिसका नाम था Z। 8 मंथ्स एक किराएदार रहा जिसका नाम है Z, वो मकान में रहा, एंड एवरी मंथ ही पेड रेंट, ईमानदारी से हर महीना रेंट दिया। कौन दिया, Z। किसको रेंट दिया, मिस्टर एक्स को, हर महीना ईमानदारी से रेंट दिया। फिर क्या हुआ, सडनली मिस Z को कुछ रीजंस की वजह से ये घर खाली करना पड़ा, घर खाली हो गया। नेक्स्ट मंथ में एक और बंदा आया, वो है ए आके रहना स्टार्ट करा ये पोर्शन में, तो 8 महीने गए, तो बच्चे कितने, 4 मंथ्स रहा ये। कौन रहा 4 मंथ्स, मिस्टर ए रहा। मिस्टर ए घर में रह रहा है लेकिन रेंट नहीं दे रहा। कितने मंथ्स नहीं दिया, 4 मंथ्स नहीं दिया। ठीक है, तो टेनेंट है घर पे, ही स्टेइंग, रह रहा है वो, 4 मंथ्स रहा लेकिन रेंट नहीं दिया, सो इसको बोलेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। इसको क्या बोलेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट बोलेंगे। सो वी कॉल अनरियलाइज्ड रेंट एज when in the house the tenant is staying but he is not paying rent. The tenant is staying in the house and is not paying rent to the owner, that is called as unrealized rent. So this is also a loss. ये भी एक लॉस है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, ARV से लॉस माइनस करें ड्यू टू वैकेंसी, और माइनस करना पड़ेगा। और क्या माइनस करेंगे, विल डिडक्ट अनरियलाइज्ड रेंट। ओके, सो 2 लॉसेस हो गए, एक घर खाली था, पैसे नहीं आ रहे, वो लॉस, घर पे किराएदार है लेकिन पैसे नहीं दे रहा है, दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट। तो 2 लॉसेस माइनस करना पड़ेगा ARV से, एक्चुअल रेंटल वैल्यू से 2 लॉसेस माइनस करना पड़ेगा। पहला लॉस, घर खाली था, इसके लिए लॉस हो गया। नेक्स्ट, घर पे किराएदार रह रहा लेकिन पैसे नहीं दे रहा, उसको बोलेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। दोनों भी लॉसेस से माइनस करेंगे। तो इट्स वेरी इजी। एक्चुअल रेंटल वैल्यू का मतलब समझे हम लोग कि मिस्टर एक्स के पास एक मकान है, ठीक है, तो वो मकान पे हर साल उसको हर महीना किराया आ रहा, तो उसको बोलेंगे एक्चुअल रेंटल वैल्यू। ठीक है, फिर एक एग्जांपल देखें, वहां पे मिस्टर वाई रह रहा था, 8 महीने रहा, 4 महीने घर खाली था, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, लॉस ड्यू टू वैकेंसी बोल रहे हैं। वी आर कॉलिंग दैट एज लॉस ड्यू टू वैकेंसी, क्योंकि कोई टेनेंट है नहीं, कोई किराएदार है ही नहीं घर पे। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर एक्स एक और पोर्शन है उसका, एक और जगह ओल्ड सिटी में, तो वो क्या करा, एक Z था, उसमें किराए से 8 महीने रहा, ईमानदारी से रेंट दे दिया वो। ठीक है, रेंट रिसीव करा कौन, मिस्टर एक्स। लेकिन एक मकान किराएदार एक और आया, मिस्टर ए, वो क्या करा, 4 महीने से रह रहा है, किराया नहीं दे रहा, तो उसको बोलेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। ओके, सो वी कॉलिंग एज अनरियलाइज्ड रेंट। दोनों भी लॉसेस है, दोनों को भी एक्चुअल रेंटल वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देयर इज अ कंडीशन, एक कंडीशन है जिसको अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने के लिए देयर इज अ कंडीशन। हम बोल रहे हैं देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है
अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करना पड़ेगा ARV से, उसके लिए कंडीशन क्या है। लेकिन वी कैन ऑलवेज माइनस ARV से, हमेशा माइनस कर सकते हैं, लॉस ड्यू टू वैकेंसी डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने के लिए देयर शुड बी कंडीशन, एक कंडीशन है, देखेंगे हम वो कंडीशन क्या है। ठीक है, चलो पहले कंडीशन लिख लेंगे। फर्स्ट विल राइट कंडीशन। कंडीशन टू डिडक्ट, क्या डिडक्ट करना है हमको, अनरियलाइज्ड रेंट। किससे माइनस करना है, फ्रॉम अनरियलाइज्ड रेंट वी हैव टू डिडक्ट, हमको अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करना है। किससे माइनस करना है, अनरियलाइज्ड रेंट फ्रॉम एक्चुअल रेंटल वैल्यू। ठीक है, तो व्हाट इज अ कंडीशन टू डिडक्ट अनरियलाइज्ड रेंट फ्रॉम एक्चुअल रेंटल वैल्यू। कंडीशन देखिए, कंडीशन ये है हमारा, कंडीशन क्या है हमारा ARV शुड बी मोर देन ERV और वी कैन से एडजस्टेड ERV। हमारे एडजस्टेड ERV से ARV ज्यादा होना चाहिए। आई रिपीट, वी हैव टू डिडक्ट अनरियलाइज्ड रेंट फ्रॉम एक्चुअल रेंटल वैल्यू। एक्चुअल रेंटल वैल्यू से ARV डिडक्ट करने के लिए ARV शुड बी मोर देन एडजस्टेड ERV। ठीक है, तो एडजस्टेड ERV ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, ARV से। अगर नहीं रहा, अगर ARV कम रहा, ARV इज लेस देन एडजस्टेड ERV, इन दैट केस यू शुड नॉट डिडक्ट एक्चुअल रेंटल वैल्यू। एक्चुअल रेंटल वैल्यू हम डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो टू डिडक्ट एक्चुअल रेंटल अनरियलाइज्ड रेंट फ्रॉम एक्चुअल रेंटल वैल्यू, कंडीशन इज व्हाट, एक्चुअल रेंटल वैल्यू शुड बी मोर देन एडजस्टेड ERV। तो ये एक्चुअल रेंटल वैल्यू ज्यादा होना चाहिए एडजस्टेड ERV से। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। एक एग्जांपल करेंगे जहां पे समझेंगे हम लोग। तो आज की क्लास का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आज की क्लास में। सो वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेप नंबर 3 में एक्चुअल रेंटल वैल्यू में हम लोग एडजस्टमेंट सीख रहे हैं आज। सो वी आर लर्निंग इन एडजस्टमेंट एक्चुअल रेंटल वैल्यू पे क्या माइनस करना है, कैसे करना है, वो हम सीख रहे हैं। तो वी केम टू नो लॉस ड्यू टू वैकेंसी एंड अनरियलाइज्ड रेंट ऑल्सो। सो अंडरस्टैंड एंड हाउ टू डिडक्ट, व्हेन टू डिडक्ट अनरियलाइज्ड रेंट, उसकी कंडीशन भी देख ली हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉल्व करना। एक प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो प्रॉब्लम हमारे टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 195 पे, क्वेश्चन नंबर 4। सी व्हाट इज इज कंप्यूट GAV ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस प्रॉपर्टीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। क्या दिया, स्टैंडर्ड रेंट दिया, FRV दिया, MRV दिया, एक्चुअल रेंटल वैल्यू दिया, इफ प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर बोल रहा है, साल भर किराए पे दिया हम लोग, अनरियलाइज्ड रेंट भी बोल रहा है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी बोल रहा है। हम दोनों लॉसेस में से सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी पे, हमारा प्रेफरेंस रहेगा। अनरियलाइज्ड रेंट के लिए हम चेक करेंगे कंडीशन कि हमारा एक्चुअल रेंटल वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, ERV से, एडजस्टेड ERV से चेक करेंगे हम लोग। 5 हाउसेस दिया, 1 2 3 4 5, तो धीरे धीरे एक एक हाउस का करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फर्स्ट हाउस का करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट हाउस वी आर फाइंडिंग आउट GAV। सो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसका, हाउस 1। ओके, सो कैसे करेंगे, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में ERV डायरेक्टली आई एम डूइंग। ओके, क्योंकि 5 हाउसेस है, सो डायरेक्टली आई एम सॉल्विंग। ओके, ERV कैसे करेंगे, ERV, MRV और FRV, विच एवर इज हाईएस्ट, हाई लो हाई याद रखना। सो 70 to 70, सो 70 इज MRV, 72 इज FRV, दोनों में हाई इज 72, तो ERV इज 72. Okay, so ERV is 72. Next, step number 2. What is step number 2? We have to find out adjusted ERV. We have to find out adjusted ERV. कैसे find, how to find out adjusted ERV? So we have to compare standard rent with ERV. So how much is standard rent? Standard rent is 71. So I'm writing 71 and adjusted ERV is 72,000. ठीक है, so low is how much,
adjusted ERV is 71,000. Next, step number 3. क्या करेंगे step number 3? GAV we have to find out. Okay, so how to find out GAV? ARV and adjusted ERV. How much is ARV? ARV is 84,000. 84,000. Adjusted ERV is how much? 71,000. ठीक है. Now ARV से रुको, माइनस करना है और we have to deduct now. क्या क्या माइनस करना है चेक करेंगे हम लोग. ARV कितना है हमारा? 84. Adjusted ERV कितना है? 71. तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? We are saying condition to deduct unrealized rent. क्या कंडीशन बोल रहे हैं हम लोग? ये unrealized rent should be more than ARV should be more than adjusted ERV. हम क्या बोल रहे हैं? ARV ज्यादा होना चाहिए. ARV should be more than. देखिए 84 71 क्या ज्यादा है? ARV है ना. ARV is more. So ऐसा रहा तो we can deduct both unrealized rent and vacancy, loss due to vacancy. ठीक है, तो दोनों भी माइनस करेंगे. तो 84 माइनस कितना कितना है? 7,000 7,000. So I can deduct 7,000 plus 7,000. ठीक है. So 84 में से 7,000 निकालो. 14,000. 84 minus 14 equal to 70 आएगा. So whichever is high, same concept, whichever is high. 70 minus 71. So GAV क्या आएगा हमारा? GAV should not be 71. हमारा GAV 71 नहीं आएगा, हमारा GAV आएगा 70. ठीक है, कैसे आएगा 70? देख, ARV कितना है? 84 माइनस 7 14 हो गया 70,000. हाई, ये हाई नहीं देखना चाहिए हमको, दोनों में से हाई नहीं देखना चाहिए. वी शुड नॉट सी हाई. तो इन दिस केस वी कैन कॉल GAV इक्वल टू, इन दिस केस वी कैन कॉल GAV इक्वल टू, वी शुड नॉट राइट हियर. ये लिखना नहीं चाहिए हमको, ये मत लिखो, हाई मत लिखो. तो यहाँ पे क्या करेंगे? खाली कंपेयर करेंगे और बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग? ARV इक्वल टू 70. सो ARV नॉट ARV, GAV इक्वल टू 70,000. 70 बोलेंगे. क्यों? वाई वी आर सेइंग सी एडजस्टेड ERV इज 71. ठीक है, अगर हम हाई लेंगे तो 71,000 होगा. तो 71 पे टैक्स भरना पड़ेगा उसको. पहले ही इसको लॉस हो गया. व्हाट इज लॉस? लॉस ड्यू टू वैकेंसी, अनरियलाइज्ड रेंट. तो गवर्नमेंट इज सेइंग इफ यू हैव टू लॉसेस, अनरियलाइज्ड रेंट एंड व्हिच लॉस ड्यू टू वैकेंसी, इन दैट केस यू टेक डायरेक्टली ARV GAV इक्वल टू ARV, GAV इक्वल टू ARV. ठीक है, देखो अब यहाँ कंपेयर करो. 70 आ रहा, एडजस्टेड ARV कितना आ रहा? 71. अब 71 आ रहा ना. इन दिस केस इफ यू आर गेटिंग 71,000 देन आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा. GAV ज्यादा आएगा. ठीक है, तो GAV ज्यादा मीन्स ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा. इन दैट केस गवर्नमेंट इज सेइंग GAV इक्वल टू ARV. तो GAV इक्वल टू ARV, हम बोलेंगे ARV इक्वल टू GAV. ओके, तो कितना आ गया हमारा? 70,000. तो 70,000 is what? Our GAV. Easy. So we can say, अब कंपेयर करो, whenever ARV is less than ERV, whenever ARV is less than ERV, तो वो केस में क्या बोल सकते हैं हम लोग? यहाँ तो ज्यादा आ रहा था, इट इज मोर. यहाँ कंपेयर करो ज्यादा हो रहा है, लेकिन माइनस करने के बाद कम हो रहा है. माइनस करने के बाद कम हो रहा, माइनस कम करने के बाद कम हो रहा. तो इन दैट केस वी कैन से GAV इक्वल टू ARV. ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक तो इजी है, यहाँ तक बहुत इजी है. टिल नाउ इट इज वेरी इजी. MRV FRV whichever is highest, whichever is least कर लिए हम लोग. लीस्ट इज 71, वी रोट हियर. ओके, अब यहाँ कंपेयर करें तो ARV हाईएस्ट लग रहा. तो वेन एवर ARV इज मोर देन एडजस्टेड ERV यू कैन डिडक्ट बोथ लॉसेस. वन इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी, माइनस कर लिए सर. देन वी हैव डिडक्टेड अनरियलाइज्ड रेंट. सिंपल कॉन्सेप्ट है. whenever ARV is more than adjusted ERV you can deduct both losses. ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट. तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग? GAV इक्वल टू ARV, ARV इक्वल टू GAV बोल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट विल डू हाउस टू. नाउ हाउस टू करेंगे अभी. नाउ से
MRV, ये हाउस 2 है, ये हाउस 1, हाउस 2, MRV, FRV. MRV is how much? Municipal value is 90, FRV is 92. 90, 92. दोनों में हाईएस्ट क्या है? 92. So ERV equal to 92. Next ERV फाइंड करें. Next adjusted ERV. How to find out standard rent minus expected rental value? How much is standard rent? Standard rent कितना हमारे पास? 88 है. 88 is standard rent and ERV is 92,000. दोनों में लो क्या है? लो is standard rent. तो adjusted ERV कितना आ रहा? Adjusted ERV is 88. Okay. Next GAV. क्या है GAV के लिए? ARV भी है and adjusted ERV है. How much is adjusted ERV? ARV कितना है? 84. See, actual rent 84. 84 ये है and 88 ये है. क्या है 88? Adjusted ERV 88 है. अब देखो कंपेयर करो, कम है ना? What is less? लेस क्या है इसमें? ERV लेस है. Now concentrate. Whenever ERV is less than adjusted ERV, क्या बोल रहे हैं हम लोग? ARV is less than adjusted ERV. और साथ में क्या बोल रहा? वैकेंसी लॉस बोल रहा एंड अनरियलाइज्ड रेंट बोल रहा. साथ में ये दो बोल रहा है. टू थिंग्स ही सेइंग. दोनों बोल रहा है इसमें. क्या बोल रहा है? अनरियलाइज्ड रेंट बोल रहा है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी बोल रहा है. ये दोनों साथ में हैं. तो व्हाट ही सेइंग हियर, या क्या बोलेगा वो? हाईएस्ट नहीं करेंगे हम लोग. हमारा थर्ड क्या था? हाई लो. हाई था ना, ऐसे नहीं करेंगे. विल नॉट डू लाइक दिस. व्हाट विल डू? विल से वेन एवर ARV is less than adjusted ERV. क्या बोल रहे? ARV is less than adjusted ERV. ठीक है. तो in that case we can say GAV equal to adjusted ERV. What we are saying? ARV is less than adjusted ERV है. देखो चेक करो, 88 है, it is 84. So ARV is less. So ARV is less than adjusted ERV. तो GAV equal to adjusted ERV. यहाँ पे adjusted ERV कितना है? 88. This is 88,000. ओके. यहाँ पे देखिए, यहाँ डिफरेंट था. यहाँ पे ARV ज्यादा था, 84,000. हम क्या करें? 84,000 नहीं लिए. सो इन दैट केस वी हैव टेकन adjusted ERV. क्यों adjusted ERV लिखी है? GAV वी हैव टेकन डायरेक्टली ARV, क्योंकि यहाँ ज्यादा था. सी हियर इट इज 8471. सो माइनस करने के बाद जो आया डायरेक्टली वी हैव टेकन GAV. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या है? देयर इज अ प्रॉब्लम हियर. ARV पहले से कम है. सो इन दैट केस यू कैन से गवर्नमेंट को लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है ये, तो इसलिए बोल रहा है adjusted ERV इक्वल टू GAV. तो GAV कितना आया? adjusted ERV से 88 आया. सो एक और पॉइंट है यहाँ पे. अब क्या करना पड़ेगा? एक और पॉइंट. अब ये adjusted ERV से माइनस करना पड़ेगा. एक ही लॉस माइनस कर सकते हैं आप. यू कैन डिडक्ट ओनली वन लॉस, दैट इज वैकेंसी लॉस. ओनली वन लॉस यू कैन डिडक्ट, दिस वैकेंसी लॉस. माइनस करो, यू विल गेट 81,000. सो 81 इज व्हाट? GAV इज 81. क्लियर? इजी. फॉरगेट अबाउट दिस अनरियलाइज्ड रेंट. अनरियलाइज्ड रेंट को इग्नोर कर दो. ठीक है. सो नो नीड ऑफ इग्नोर व्हाट कंसीडरिंग अनरियलाइज्ड रेंट.